ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਮਨਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਆਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਪ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ, ਆਮੀਨ। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦਾ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨਨ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਬੂਰ 46:5 ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 46:5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਡੋਲੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਡੋਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਕਰਟ ਅਤੇ ਭੇਦ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੀਕਰਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਅਤੇ ਭਾਲਦੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਫਲ ਲਿਆਉਣ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।
अज बहुते लोग इसे तरह परमेश्वर की खोज विच लगे हुए हैं ते वो सोचते हैं कि परमेश्वर साडे नाल है। कदे भी नहीं, कदे भी नहीं। वो लोग सोच लैन कि परमेश्वर इस तरह नहीं है, क्योंकि बाणी दे विच प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिहड़ा मनुख दो सेवकां दी सेवा करता है वो डुब जाता है, वो कदे पार नहीं लंघदा। प्रभु यीशु मसीह कहते ने वो एक नूं खुश करेगा अते दूसरे की बुराई करेगा। इहदा मतलब उन्हां दी खोज बुराई दे उत्ते रहिंदी है, अशुद्ध गल्लां दे उत्ते रहिंदी है, अशुद्ध विचारां दे उत्ते रहिंदी है। वो कदे अगे वधण वालियां गल्लां नहीं करते हैं। बाणी दसदी है जिहड़े परमेश्वर की खोज करते हैं परमेश्वर उन्हां नाल है। असी खोज किहड़ी कर रहे हैं? बुराई दी, चुगलियां दी, निंदा दी। ये पाप है जिहड़ा नित प्रतिदिन मेरे सुभाव नूं घृणित करके परमेश्वर तो दूर कर रहा है। पर परमेश्वर ने मेरे जीवन दे विच अपनी खोज दा कारज अपने प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी दे राही कलवरी क्रूस उत्ते कीता है। उसने सानू भालिया है, सानू लभ्या है, सानू पापियां ते मलहिदड़ां नू लभ्या है, अपने कोल बुलाया है कि असी ओदी संगत विच हो सकीए। कितना अद्भुत दृश्य है, कितना महान दृश्य है। मैनू याद आउंदा है नबूकदनेस्सर द्वारा बनाई गई मूर्ति नू तोड़न वाला पत्थर छोटा ही सी, पर बाद विच ओ वड्डा बन के पूरी धरती विच फैल गया। दानियल 2:35 विच लिखिया है। परमेश्वर बड़ी आसानी नाल दिखा रहा सी कि जो जो गल्लां बनावटी हन उन्हां दा अंत अचानक आ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। अजिहे लोग सोच लैन जिहड़े इस तरह दीयां गल्लां करदे ने बनावटी ते खाण नूं भगती। असीं बहुत खोज करन वाले हैं, असीं बाइबल नूं पढ़दे हैं, बाइबल दा बहुत ज्ञान रखदे हैं, पर जीवन पाप दे नाल छुपिया होया है, पाप दे नाल लुकिया होया है। अपने घर दे विच अपनी पत्नी दे नाल लुको रखिया है, अपने बच्चियां दे नाल लुको रखिया है, अपने बॉस नाल लुको रखिया है, अपने अधिकारियों नाल लुको रखिया है, अपने कलीसिया दे महत्वर भाइयों दे नाल छुपा रखिया होया है। देखण नूं यू आर बिलीवर, ओ ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इस तरह कह के खुश हो के और इस तरह जपदा है, इंज जपदा है कि ये वर्गा कोई भक्तहीन व्यक्ति नहीं है। ये बहुत खोज करने वाला है परमेश्वर दे नाल, पर अंदरों बाइबल दसदी है अजिहे व्यक्तियों का अंत अचानक आ जाएगा, अचानक। प्यारो, इसलिए मैं आपनू दसदा हाँ, जो काम परमेश्वर वालों है उस नू कदे हिलाया नहीं जा सकता या हटाया नहीं जा सकता। परमेश्वर काम की शुरुआत साधारण क्यों ना होवे, पर ओ सदा काल तक बनया रहेगा। शुभ समाचार प्रचार दे लई परमेश्वर स्वर्ग दूतां दा उपयोग नहीं करेगा। ओ तां दीन औरतां पुरुषां नूं छोटे अते निर्बल पात्रां दे रूप विच शुभ समाचार दे लई उपयोग करदा है। इस तरीके नाल शैतान दा घर नाश हुंदा है अते ओ अपने राज नूं स्थापित करदा है। इहदा मतलब परमेश्वर की खोज है। किहड़े लोग उहदे राज दे उन्नति दे लई
खोज कर रहे हैं, अजिहे लोगों को अपने विच लिया के वो इस्तेमाल करता है। जिमें उन्हें पौलुस, बरनबास, पतरस, यूहन्ना, याकूब, तिमोथियस, सिलास, मरकुस जो यूहन्ना कहलाउंदा सी, और आप नूं अते मैनूं भी इस्तेमाल कर सकता है। पर जे असी खोज करते हैं, जे खोज करते हैं तो परमेश्वर का वचन जो इस जगह के उत्ते जो बाइबल की 46 की 5 विच लिखिया है, जो परमेश्वर नूं लभदे हन, खोजदे हन, परमेश्वर अमृत वेले उन्हां दी सहायता करेगा, भाव उन्हां दे नाल होवेगा। पतरस प्रचार कर रहा, उहदे नाल हर समय परमेश्वर की हजूरी बनी पाई गई। इसे करके उसने कहा, परमेश्वर ना मैनू कदे छड्डेगा ना कदे त्यागेगा। कितना अद्भुत विश्वास, कितना अद्भुत परमेश्वर का आश्वासन असी परमेश्वर के वचन विच पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद एक छोटे पत्थर के रूप विच इस संसार विच आया। 16 अध्याय दे विच पढ़ते हैं, मैं इस पत्थर उत्ते अपनी कलीसिया बनावांगा। छोटे पत्थर के रूप विच आया। वो संसार दे रजाशी ठाट दे नाल नहीं आया, वो सिर्फ मनुख दे रूप विच आया, मैनू अते आप नूं बचाउण दे लई, मैनू अते आप नूं पालण दे लई, मैनू अते आप नूं परमेश्वर दे राज दे वारिस बनाउण दे लई मनुखी रूप विच आया। अते फिर भी पाप रहत सी, उस विच पाप नहीं सी, पर मैनू पाप तो बचाउण दे लई आया कि मैं उस विच होके परमेश्वर की खोज करता होया परमेश्वर को जा पहुंचा, उस दे नाल जा मिला। कितनी अद्भुत गल है। असी परमेश्वर के वचन के भेतां नूं समझ नहीं सकते, पर जे प्रभु यीशु मसीह है तो वह मैनू परमेश्वर के भेतां नूं पालण अते उसकी खोज करन विच मेरी मदद करता है। उस दे नाल मैं परमेश्वर की महिमा वडियाई करदा होया उसकी जिउंदी आस विच वाधदा जांदा, उस दे लई वो मेरी मदद करता है, उसे वेले करता है। अते अज भी उसके चेलियां की गिणती थोड़ी है, पर उसके राही वो अपने राज नूं स्थापित कर रहा है। परमेश्वर दे वचन नूं स्वीकार करने वाले लोग भावें ही सीधे सादे होण, वो नरम अते उन्हां दे दिल विच पूरी शांति अते आनंद नाल भरदा है। मेरे प्यारे असीस, जे तुसी परमेश्वर की खोज करोगे, जे तुसी परमेश्वर नूं भालोगे, जे परमेश्वर नूं तुसी लभोगे तो तुहाडे कोल आवेगा, वेले सिर तुहाडी मदद करेगा अते तुहानूं अपनी शांति नाल भर देवेगा अते अपने आनंद विच ले आवेगा। ये उस दा वायदा है, ये मेरा वायदा नहीं, उस दा वायदा है। उस दा वायदा मेरे जीवन विच सच्चा है और वो सच्चा वादा वो मैनू अपने वचन दे राही अपने पुत्र दे वसीले दे रहा है। जे तुसी उस शांति नूं, उस प्रेम नूं, उस आनंद नूं अपने जीवन विच प्राप्त करना चाहते हो तो उसकी खोज करो, तो वो तुहाडी मदद करेगा इन्हां सारियां गल्लां नूं प्राप्त करन दे लई। कि तुसी तैयार हो उसकी खोज करन दे लई? जे तैयार हो तो वह भी तैयार है तुहाडी मदद करन दे लई। परमेश्वर आप नूं इस वचन दे नाल बरकत देवे। जय मसीह दी। मारानाथा।